کراچی سے خیبر تک خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور حکومت میں جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر سراج الحق کا ملاکنڈ میں تقریب سے خطاب۔ جعفر آباد میں منعقدہ رنگا رنگ ثقافتی میلہ ختم۔ آخری روز میوزیکل شو میں فنکاروں نے شاندار پرفارمنس دے کر محفل لوٹ لی۔ لیا میں بینک ڈکیتی کی کوشش ناکام۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ شکرگڑھ میں نجی اسکول کی چھت گرنے سے 4 بچے جاں بحق، 16 زخمی۔ سرائے کی صوبے کی قرارداد کی منظوری پر ڈیرہ غازی خان میں سرائے کی پارٹی کی جانب سے حکومت کی حمایت میں ریلی۔ اور ڈہرکی میں 11ویں جماعت کا اسلامیات کا پرچہ آؤٹ، طلبہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے۔ آپ نے جانی ہیڈ لائن، سفر شروع کریں گے خیبر پختونخوا سے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور حکومت میں جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ بٹخیلہ میں مسلم لیگ کے سابق ایم حاجی عنایت خان کی جماعت اسلامی میں شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ ان حالات میں حکومت فوری طور پر انتخابات کا اعلان کر کے عوامی نمائندوں کے حوالے حکومت کر دے۔ اس موقع پر حاجی عنایت خان نے جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مخلص ہے۔ وزیرستان ایجنسی میں دہشت گردی کی وارداتوں کے باعث خوف میں مبتلا لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے وزیرستان نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جہاں سے آفریدی۔ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں دہشت گردی کی جو لہر اٹھی اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے قبائلی علاقوں کو اٹھانا پڑا اور خاص کر سب سے زیادہ وزیرستان ایجنسی متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے ان علاقوں کے اکثر نوجوان شدید ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے وزیرستان کے طالب علموں نے پشاور کے ایک مقامی ہوٹل میں وزیرستان نائٹ کا اہتمام کیا تھا، جس میں ملکی اور ہمسایہ ملک کے نامور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ہوم سیکرٹری خیبر پختونخوا جناب شفیع اللہ خان وزیر مہمان خصوصی تھے اور اس تمام پروگرام کا انتظام بھی اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کا بیڑا بھی انہوں نے اٹھایا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے اس پروگرام کو امن کا نام دیتے ہوئے کہا، وزیرستان میں خصوصاً اور باقی قبائل میں جاری لہر کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں آج پشاور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے یہ موسیقی کا پروگرام کیا گیا تاکہ یہ لوگ اپنے پریشانیوں کو بلا کر علاقے کے ترقی اور امن کے لیے خصوصی کردار ادا کرے ہیں۔ وزیرستان کے نوجوان نے مل کر اس موقع پر وزیرستان کا روایتی رقص یعنی وزیرستان اتن پیش کیا اور کہا کہ یہ اتن ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے، اور اس اتن میں صوبے کے اعلیٰ بیوروکریٹ اور علاقے کے معززین اور سیاسی قائدین نے بھی شرکت کی۔ حالات کے مناسبت سے ہم نے یہاں ایک پروگرام ارینج کیا ہے کہ اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں ہیں، جتنے بھی لوگ وزیرستان کے ہیں، وہ حالات کو بھول کر یہاں انٹرٹینمنٹ کرے۔ یہ ہماری ثقافت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ثقافت جاری رہیں، تو اس لیے یہ ہم اپنا ثقافت اپنے علاقے میں نہیں منا سکتے ہیں تو مجبوراً یہاں پشاور میں منائے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فاٹا میں جو حالات ہے وہاں کی میوزک پر پابندی ہے، تو اس لیے یہ اسٹوڈنٹ حضرات جو ہے نا یہاں پشاور میں اس طرح میوزک کرتے اور تو اس طرح وہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 2 مہینے یا 3 مہینے میں اس طرح اسٹوڈنٹ
स्टूडेंट को एंजॉय करना मेरे ख्याल में अच्छी बात है। दहशतगर्दी और तनाव के इस दौर इस तरह के प्रोग्राम ताज़ा हवा का एक झोंका है और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए सरकारी सतह पर सरपरस्ती करके इन नौजवानों को दहशतगर्दी की बजाय अमन की तरफ राग़िब करें। 9/11 के बाद पूरी दुनिया में दहशतगर्दी और खासकर कबायली इलाकाजात में अक्सर लोग जहनी मरीज बन चुके हैं। इस तरह के प्रोग्राम का मकसद इन लोगों को जहनी सुकून पहुँचाना है। हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों की मुकम्मल हौसला अफजाई करे। कैमरामैन हामिद अली अफरीदी के साथ जहांजेब अफरीदी, वक्त न्यूज़, पेशावर। वह सिलसिला जारी है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खबरें हैं अब पंजाब की और पंजाब में तस्करा इस्लामाबाद का, जिसके दोनों बड़े सरकारी अस्पतालों पिम्स और पोली क्लिनिक में हेपेटाइटिस के टेस्ट की सहूलत मैसर नहीं है। वजह जानेंगे इसकी अपने नुमाइंदा काशिफ रफीक से। काशिफ रफीक, बताइएगा कब से ये सहूलत मैसर नहीं है और अब तक इसकी जानिब ध्यान क्यों नहीं दिया गया? देखें, जो वफाकी दारुल-हुकूमत में ये पोली क्लिनिक और पिम्स दो मेजर हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आवाम को फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड की जा रही है और उनकी हालत ये है कि यहाँ पर अब तक हेपेटाइटिस की मशीनें जो हेपेटाइटिस के टेस्ट PCR करती हैं, जिससे ये तशखीस की जाती है कि इसमें वायरस कितना है और कौन सी मेडिसिन यूज करवाई जाए, उसके दो इब्तदाई टेस्ट और जो इससे असल तशखीस की जाती है वायरस की रेशो की, इन दोनों के टेस्ट की मशीन अवेलेबल नहीं है, ना पिम्स में ना पोली क्लिनिक में। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनकी सहूलियत अवेलेबल है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स 4 से 8 हज़ार रुपया पर टेस्ट पर मरीज ले रहे हैं। जबकि जब हॉस्पिटल की इंतजामिया और हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे एक मशीन USAID वालों ने हमें डोनेट की थी, जिसको हमने वो भी पिम्स में, और जिसको उन्होंने सिर्फ एड्स के टेस्ट के लिए रखा हुआ है, जबकि हेपेटाइटिस C के हवाले से कोई मशीन अवेलेबल नहीं है। और वो उनको ये कहते हैं कि जाके एटॉमिक एनर्जी का हॉस्पिटल जो है उधर से टेस्ट करवाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल से कराएं, जबकि एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल में भी ये टेस्ट जो है वो 3 से 6 हज़ार रुपए की मालियत के हो रहे हैं। जबकि हमारे आज जो कैट के वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने हमें ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि इस के टेस्ट नहीं हो रहे हैं जिससे हेपेटाइटिस की रेशो में इजाफा हो रहा है और वफाकी दारुल-हुकूमत और सेहत के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे अभी तक इसकी सहूलत मौजूद नहीं है और ना ही उनका हुकूमत का इस तरफ कोई तवज्जो है कि वो इस तरह की कोई मशीन यहाँ पे ला सकते हैं। काशिफ रफीक, आपका बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ में बता रहे थे हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से जो इस्लामाबाद के दो बड़े अस्पताल हैं, इन जिनमें एक पिम्स शामिल है और पोली क्लिनिक दूसरा अस्पताल, जिनमें हेपेटाइटिस के टेस्ट के लिए मशीनें और इसके अलावा जो मतलूबा मशीनरी है वो मौजूद नहीं है, जो कि प्राइवेट अस्पतालों में इस मकसद के लिए भारी फीसें वसूल की जा रही हैं। मज़ीद खबरों की जाने बढ़ते हैं। मॉल रोड पर इमारत पर कब्जे के तनाज़े पर दो मुसल्लह ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज खान से। सरफराज, बताइए क्या तफसीलात है? जी, लाहौर के मारूफ तजारती मरकज माल रोड पर वाक़ एक बिल्डिंग के फ्लोर पर कब्जे के दौरान 2 मुसल्लह ग्रुपों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है और इस फायरिंग के तबादले के नतीजे में 4 अफराद जो है वो शदीद जख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये माल रोड पर वाक़ नकी मार्केट है और इसका कब्जा जो था इस नकी मार्केट का ये चौधरी रियाज नामी शख्स के पास था और जो दूसरी पार्टी है जो इसके ऊपर कब्जा करना चाहती थी वो गोंदल ब्रादरान हैं, जिनमें से एक का नाम जो है वकार है और दूसरे का नाम जो है मुस्तनसर गोंदल है। आज तकरीबन कोई 12 बजे के करीब वकार और मुस्तनसर गोंदल जो है मुसल्लह साथियों के हमरा जो है आज नकी मार्केट के करीब आए और उन्होंने जो इस इमारत का जो दूसरा फ्लोर है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए वहां पर मौजूद लोगों के ऊपर शदीद फायरिंग कर दी और जिसके बाद जो है दूसरी पार्टी जो चौधरी रियाज नामी शख्स की पार्टी है उसने भी जो है इनके ऊपर जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग के नतीजे में जो है गोंदल ब्रादरान के भी 2 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि चौधरी रियाज के भी 2 अफराद जो हैं जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलने पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके के ऊपर पहुंच गई है और इस वक्त जो माल रोड है यहाँ पर जो है वो शदीद खौफ और रात देखने में आ रहा है और इस वक्त तमाम की तमाम मार्केट्स जो माल रोड के ऊपर मौजूद थी, जो कि नकी मार्केट के इर्द गिर्द और पैनोरामा सेंटर के बाहर मौजूद थी, उन तमाम मार्केटों को जो है वो बंद कर दिया गया है। पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया है और इन अफराद को जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन तमाम अफराद जो कि हिरासत में लिए गए हैं और जो इस कार्रवाई में मुलव्विस थे, जिन्होंने फायरिंग किया, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी
जी बहुत शुक्रिया सरफराज खान, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि लाहौर में इमारत पर कब्जे के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर। पुलिस ने वहाँ पर कंट्रोल किया है और फायरिंग बंद करवाई है। लाहौर में इमारत पर कब्जे के दौरान 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इमारत पर कब्जे का ही मामला था जिस तनाज़े की वजह से ये झगड़ा इस कदर तूल इख्तियार कर गया। और आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो एक्सक्लूसिव फुटेज जिसमें आप फायरिंग करते सड़क पर भागते नौजवानों को देख सकते हैं जो कि फायर कर रहे हैं। और इस तरह से आज़ादाना फायरिंग के नतीजे में वहाँ जो मौजूद मार्केट्स हैं जिनमें मार्केट शामिल है वो दुकानें बंद करा दी गई खौफ हरास के सबब। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि 4 अफराद इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए हैं जबकि 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस की जानिब से, जो कि फौरन ही वहां पहुंची और उसके बाद मामले को रफा दफा कराया गया। ताहम अभी जो मार्केट्स हैं वो बदस्तूर बंद है और ये तनाज़ा एक इमारत पर कब्जा करने के मामले पर हुआ। जी बिल्कुल, मजीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। लिया के नवाही इलाके पीर जुगी में सिक्योरिटी गार्ड ने जान पर खेल कर बैंक डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। हबीब बैंक पीरजुगी ब्रांच में आज सुबह 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने असलहे के जोर पर बैंक में घुसने की कोशिश की। ताहम सिक्योरिटी गार्ड ने एक डाकू को पकड़ लिया तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी जिसकी जद में आकर सिक्योरिटी गार्ड और बैंक में मौजूद 2 अफराद 22 साला आड़ती अब्दुल्ला नासिर और 70 साला अल्लाह दित्ता जख्मी की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग से बैंक मैनेजर अमानुल्लाह भी जख्मी हुआ जबकि बैंक के दीगर अमले ने स्ट्रांग रूम में घुसकर जान बचाई। इस दौरान डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के ताखीर से पहुंचने पर मुश्तइल अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए टायर जलाकर लिया पीर जुगी रोड को ब्लॉक कर दिया। नाज़रीन, शकरगढ़ में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे जाम बहक जबकि 36 जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक हादसे के वक्त क्लासरूम में कुल 40 बच्चे मौजूद थे जिनमें से 4 मौका पर ही जाम बहक जबकि 2 असातिज़ा समेत 36 बच्चे जख्मी हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मलबे तले दबे बच्चों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब हादसे की इतला मिलते ही वालिदैन की बड़ी तादाद भी स्कूल के बाहर पहुंच गई। कौमी असम्बली में सरायकी सूबे की करारदाद की मंजूरी पर डेरा गाजी खान में सरायकी पार्टी की जानिब से हुकूमत की हिमायत में रैली निकाली गई। ये रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर ट्रैफिक चौक पर खत्म हो गई। रैली में मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर सदर और वजीर आजम के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने सरायकी सूबे की करारदाद सेनेट और कौमी असम्बली में मंजूर करवाकर सरायकी अवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया है, लेकिन नवाज शरीफ ने सरायकी सूबे की मुखालिफत करके अवाम दुश्मनी का सबूत दिया है। खबर है लाहौर से कि लाहौर के इलाके धर्मपुरा में बस ने तालिब इल्म को कुचल कर हलाक कर दिया जिसके बाद मुश्तइल तलबा ने हंगामा आराई करते हुए 3 बसों को आग लगा दी। जी हाँ, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में मुसाफिर बस की जद में आकर एक तालिब इल्म जाम बहक हो गया जिसके बाद मुश्तइल तलबा ने 3 बसों को नजर आतिश कर दिया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई जबकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मालूम हुआ है कि जाम बहक तालिब इल्म घर से अपने डिप्लोमा की सनद लेने के लिए कॉलेज जा रहा था कि धर्मपुरा के करीब तेज रफ्तार बस ने उसकी जिंदगी का चराग गुल कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलका कोहिसार मरी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर असिस्टेंट कमिश्नर मरी के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। साबिक नायब नाजिम मिर्जा सुहेल बेग और दीगर की क़यादत में मुजाहिरीन ने डाखाना चौक से मॉल रोड और चनार चौक तक एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमाओं का कहना था कि एसी मरी की तब्दीली और कारकुनान की इज्जत नफ्स की बहाली तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। इंडोनेशियन पार्लिमानी वफ्द के चेयरमैन मोहम्मद हता ने कहा है कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान फ्री ट्रेड वक्त की अव्वलीन जरूरत है। इस मकसद के लिए इंडोनेशिया पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत और पायदार बनाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहा है। सियालकोट में सर्जिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के दौरे के मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान चेयरमैन मोहम्मद खौता ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात मजीद बढ़ाने के लिए कोशां है।
हमारे दौरे का बुनियादी मकसद भी यही है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में हायल रुकावटों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान से तिजारत को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है क्योंकि मेरे दादा का ताल्लुक भी गुजरांवाला से था। और अब जिक्र फिरोज वटवा का, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग से लाखों रुपए मालियत का कीमती घरेलू सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं असदुल्ला वट्टू। फिरोज वटवा के मोहल्ला मलिक अहमद खान में साबिक काउंसलर मोहम्मद सरवर रेहान के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग भड़क उठी और आग के शोले बुलंद होने लगे तो अहले खाना ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, मगर आग पर बर वक्त काबू न पाया जा सका और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे घर में मौजूद तमाम सामान जलकर राख का ढेर बन गया। आग इस कदर शदीद थी कि छत पर लगे हुए इलेक्ट्रिक फैन भी तपश से पिघल गए और घर में रखा हुआ जो साल भर का गल्ला था वो भी जलकर राख का ढेर बन गया, जिससे मुतासरा खानदान के पास अब खाने पीने के लिए कुछ बाकी न बचा है और ये खानदान अब अल्लाह के आसरे पर ही है। जबकि इधर शहर भर में हुकूमत की जानिब से कहीं भी आग पर काबू पाने के लिए कोई हिफाजती इंतजाम मौजूद न है। अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कहीं हादसा पेश आ जाए तो 25 किलोमीटर दूर जिली हेडक्वार्टर शेखुपुरा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही सब कुछ जल जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने वाली आग ने लाखों रुपए का नुकसान किया है। जरूरत समर किया कि अगर हम हंगामी हालात पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर पहले से इख्तियार कर लें तो इतने बड़े नुकसान का सामना न करना पड़े। कैमरामैन आरिफ मलिक के साथ असदुल्ला खान वट्टू, वक्त न्यूज, फिरोज वटवा, जिला शेखुपुरा। खानेवाल में ऑयल टैंकर उलट जाने से 60,000 लीटर मिट्टी का तेल बह गया। मुकामी लोग ड्रमों और बाल्टियों में मिट्टी का तेल भरकर ले गए। ऑयल टैंकर कराची से 60,000 लीटर मिट्टी का तेल लेकर लाहौर जा रहा था कि खानेवाल के नवाही इलाका जंगल मड़याला में ऑयल टैंकर की कमानी टूट गई, जिससे ऑयल टैंकर उलट गया और 60,000 लीटर मिट्टी का तेल जमीन पर बह गया। मुकामी आबादी के लोग जमीन पर बहने वाला मिट्टी का तेल ड्रमों, बोतलों और बाल्टियों में भर कर ले गए। बहावलनगर में हारूनाबाद रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी के बायस 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि जख्मों की ताब न लाते हुए फारूकाबाद के रिहायशी नौजवान मोहम्मद काशिफ मौका पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने जख्मी वकील शबनम बीबी, कासिर बीबी और फारूक नामी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर शोबा हादसा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर मुंतकिल कर दिया। ताहम नौजवान फारूक की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत लाहौर समेत मुख्तलिफ रीजन्स के सीएनजी स्टेशन आज सुबह 6 बजे से अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल और मुल्तान रीजन्स में सीएनजी स्टेशन की बंदिश से कबल शहरियों की बड़ी तादाद गाड़ियों में सीएनजी भरवाने गैस स्टेशन पहुंच गई, जिसके बाद सीएनजी स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स उनसे मनमानी कीमत वसूल करते हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे बलूचिस्तान से। तहरीके इस्तकलाल के मरकजी सदर अहमद खान वर्दक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चारों सूबों में बल्दियाती इंतखाबात करवाकर जमहूरियत को निचली सतह पर आवाम तक पहुंचाए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इंतखाबात कराए जाए, जिससे इलेक्शन में दौलत का अमल दखल खत्म हो जाएगा और मुतवस्सित तबके की हकीकी क़यादत सामने आएगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत परवेज मुशर्रफ की पॉलिसीज पर अमल पैरा है, जिसकी वजह से मुल्क में बेचैनी बढ़ती जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और साबिक तहसील नाजिम हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि कल्लात इंतजामिया चोरी, डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है।
मरकज़ इस्लामी कलात में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि लोगों ने अब चोरों और डाकुओं के खौफ से घरों से निकलना बंद कर दिया है। उनका कहना था कि कलात इंतजामिया चोरों और डाकुओं के साथ मिलकर गरीब आवाम को लूट रही है, जबकि बढ़ती हुई बदअमनी के बायस कलात में कारोबार जिंदगी तबाह होकर रह गया है। लोग अपना सरमाया मुंतकिल करके कलात से नकल मकानी कर रहे हैं। अगर डीपीओ का जल्द तबादला नहीं किया गया तो कलात में हालात मजीद अबतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम 12 मई को बदअमनी और कलात इंतजामिया की नाकामी के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। जाफराबाद में मुनाकिदा रंगारंग सकाफती मेला इख्तिताम पसीर हो गया। आखिरी रोज म्यूजिकल शो में फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस देकर महफिल लूट ली। जाफराबाद में होने वाले 3 रोज़ा अवामी सकाफती मेले की इख्तितामी तकरीब के दौरान म्यूजिकल शो का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ गुलकारों और गुलकाराओं ने फन का मुजाहरा करके अवाम से खूब दाद पाई। मेले की तकरीबात में वफाकी वजीर चंगेज़ खान जमाली भी शरीक हुए। इस मौके पर उनका कहना था कि 2010 के सैलाब के बाद पहली बार जाफराबाद के शहरियों के चेहरों पर ऐसी खुशी नजर आ रही है जो कि निहायत खुश आइंद है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी ने कहा है कि हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसीज की बदौलत मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। डेरा मुराद जमाली में एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून एक सजा याफ्ता शख्स को कभी वजीर आजम तस्लीम नहीं करेगी। अगर गिलानी ने फौरी तौर पर इस्तीफा नहीं दिया तो अवाम इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करें। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी और मीर निजामुद्दीन का कहना था कि अवाम का ठाठ मारता समंदर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम किसी सूरत अदलिया के फैसलों की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका कहना था कि हुकूमती नाकिस पॉलिसीज की वजह से तमाम मुनाफा बख्श इदारे बैठ गए हैं। कबलजी लहरी हाउस डेरा मुराद जमाली से साबिक सूबाई वजीर अब्दुल गफूर लहरी की क़यादत में हजारों अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सिंधुती में खबर है मीरपुर खास से, जहां सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम 11वीं जमात के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू हो गए। 11वीं जमात के सालाना इम्तहानात के लिए जिला भर में 56 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तहानात में कल कुल 15,950 तलबा तालिबात शिरकत कर रहे हैं। इम्तहानात में शरीक तलबा तालिबात के लिए नाक़िस सहूलियात की वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब पेपर्स हल कराने वाली बूटी माफिया इम्तहानी मराकज़ के बाहर नकल कराने में सरगर्म अमल है। ढहरकी में आज से शुरू होने वाले 11वीं जमात के सालाना इम्तहान से कबल इस्लामियात का पर्चा आउट हो गया। इस्लामियात का पर्चा आउट होने के बायस हलशुदा सवालात इम्तिहानी सेंटर्स में पहुंचाने का सिलसिला जारी रहा। वक्त न्यूज की टीम के सर्वे के मुताबिक आउट होने वाला इस्लामियात का ये पर्चा बोर्ड से जारी किया गया, जिसकी कॉपीज बाजार से हासिल करके तलबा कॉपी करते रहे, जबकि इंतजामिया ने इसका नोटिस लेने के बजाय चुप साध ली है। और एज इन कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत इंटर के इम्तहानात का आगाज हो गया है। मुख्तलिफ इम्तहानी मराकिज़ में बिजली न होने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि कई तलबा नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़े भी गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से SM इरफान। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के तहत इंटर के पहले मरहले के इम्तहानात में 152 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। प्री इंजीनियरिंग इस्लामियात के पहले पर्चे में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डॉक्टर सैफुर रहमान, चेयरमैन इंटर बोर्ड अनवार अहमद सही और नाज़िम इम्तहानात इमरान चिश्ती ने शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन इंटर बोर्ड का दावा था कि तमाम इंतजामात तसल्ली बख्श अंदाज में मुकम्मल किए गए हैं। पहला दिन है और आपको ये यकीनन देखकर खुशी हुई होगी कि पहली चीज़ तो ये कि वक्त पर पर्चे पहुँच गए सब जगह। दूसरी चीज़ ये कि पहली मरतबा आप देख रहे हैं कि बाहर नफरी मौजूद है, 2 ऑफिसर्स हैं और 10 जवान हैं जो कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है उसको रोक रहे हैं। कहीं एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आपको नहीं मिलेगा। देखिए सेक्शन 144 लगा हुआ है, कोई भी 100 मीटर के फासले पे फ़ोटो स्टेट मशीन अगर होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक रात पहले तमाम फ़ोटो कॉपियर मशीनों को कह दिया जाता है कि वो अपनी अपनी मशीनें सुबह 9:30 से लेकर 12:30 तक बंद रखें और शाम को 2:30 से 5:30 तक बंद रखें। उसके बाद उनका बिजनेस है वो खोल सकते हैं। इम्तहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए इम्तहानी मराकिज़ में दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, जबकि नकल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया गया है।
एक ही बच्चा अभी तक ये पकड़ा गया, लेकिन हमने पकड़ लिया इसको। अब ये है कि हमारे पास ये लिफाफा बंद होकर इसकी कापी दूसरी कापियों से अलग आएगी, और अब हम UFM जो हमारी कमेटी होती है, अनफेयरमीन कमेटी, वो इस पर डिसीजन लेगी। दौरे के दौरान ये बात भी सामने आई कि बिजली ना होने के बायस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद गर्मी में बैठे हुए हैं, यहाँ लाइट नहीं है और सही निज़ाम नहीं है, टेबल भी अजीब टेढ़ी टेबल है और बहुत सी चीज़ें हैं। कब से गर्मी में बैठे हैं, कोई इंसान नहीं है भी नहीं है, और ये डेस्क भी, चेयर भी टूटी हुई है इसकी, और इंक विंक फैल रही है, प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। वैसे चेयरमैन इंटरबोर्ड ने इम्तहानी मराकिज़ के दौरे के दौरान नकल करने वाले तुलबा को भी रंगे हाथों पकड़ा, जिनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की गई। KESC की यकीन दहानी के बावजूद मुतादिद सेंटर से लाइट गायब है, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नोमान सईद के साथ SM इरफान, वक्त न्यूज़, कराची। सखर में मुज़र सेहत पानी की फराहमी के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। सखर शहरी इत्तेहाद की जानिब से किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए नसीर गोपांग, अशफाक भट्टी और दीगर ने कहा कि नाकिस इंतजामिया की नाअहली के बायस सखर के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा और MNA की सखर में मौजूदगी के बावजूद शहरियों को पानी फराहम करने में इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि शहरियों को पानी की सप्लाई के लिए गाड़ियां भी बहाल की जाएं। उधर वाड़ी तड़ के मकीनों ने दादू चौक पर भी एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि 8 दिन से उनके इलाके में पानी की फराहमी बंद है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली गुलाम अली निजामानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खजाना खाली मिला था, मगर आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा। मातल के गांव खंडू तमाचन और मलहन समेत तालुका टंडू गुलाम अली के नजरपुर में गैस की फराहमी की 4 स्कीमों का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि मुखालिफिन की प्रोपेगेंडे के बावजूद पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत का सफर जारी रखेगी। इससे कबल उन्होंने नजरपुर में पीपल्स पार्टी के मुकामी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। इस मौका पर स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के रीजनल मैनेजर सईद अहमद लाड़क ने गैस की फराहमी की स्कीमों के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की जानिब से लियारी में होने वाले ऑपरेशन के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत लियारी में बेगुनाह बलोचों के खिलाफ ऑपरेशन करके अपने तहादियों को खुश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे कराची में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी जारी है, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ लियारी में किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ इत्तेहादियों को खुश करना है। उन्होंने कहा कि लियारी का मसला सियासी है, इसे मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। और नाज़रीन, कराची से खैबर तक का सफर यहीं तमाम हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।